Good morning, children. Now let's start our chapter number 13. Chapter number 13 is algebraic expression. Before start our exercise of this chapter, first we will discuss some topic. Okay, so you know the algebraic word. Algebraic word is related to with this variable and constant. Variable means not fixed any digit, it means we are talking about alphabet, and constant, it is a fixed digit like 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so now you can see the definition. Variable not fixed digit, we can say in one word not fixed होता है और ये constant fixed होता है. एंड इन दोनों से मिलकर जो बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर जो बनता है इसको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन. Okay, or now this expression it become equation when equal sign is there and some digit is also represent here. यहाँ पे इक्वल डिजिट भी है, तो इस पूरी को क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इक्वेशन. Okay, so this is the most important for this chapter. These are the words. Okay, now then after term, now we will learn the next step. Term. What is a term? How many term is there? 1 and 2. So how you will write these are the term? ऐसे 2x लिखा and then put comma and the plus 3 in this equation. If the expression it is given this one 3x minus y, how can you write in a term? 3x comma minus y. Don't forget those negative sign. ये negative sign साथ में ही चलेगा. Through one more example you can understand. 3x square minus 2x plus 4. So how can you break these are the term? 3 term है, 3 term में break होगा. कैसे term को break करेंगे? First we will write 3x square comma minus 2x comma plus 4. So these are the 3 term in this expression. And this term is defined to 3 way. One is monomial. What is a monomial term? Second is binomial. And third is trinomial. Monomial means one expression it should there. Binomial means two term, not expression. One term, इसमें 2 term होनी चाहिए और trinomial में 3 term. 3 का t और t से trinomial तो 3 term. Remember always. Okay. और b is coming in second position on alphabet. So this is remember. It is easy for remembering. Binomial में कितनी terms होती है? 2. Here you can see the example 4x square. Only one term is there. And if you can see here 4x plus 3, 2 term here 4x square plus 3x 7, 3 term. So understand this term different term part. Term part is divided in 3 ways. One is monomial, binomial and trinomial. Monomial means 1 term, binomial means 2 term, trinomial means 3 term. After understand the term condition, now we will understand how to do factor of any term. Factor of term. फैक्टर्स कैसे करते हैं? कोई भी नॉर्मल डिजिट होती है. इफ़ आई एम राइटिंग हियर 36, हाउ कैन यू डू द फैक्टर ऑफ 36? 1 की टेबल से डिविजिबल होता है, 2 की टेबल से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है. यानी 36 किस नंबर से डिविजिबल आता है काउंटिंग में? 5 से नहीं होता, 6 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से डिविजिबल है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 16 से नहीं, 17, 18 एंड लास्ट नंबर इटसेल्फ. ऐसे ही फैक्टर करते थे अपन किसी भी नंबर का न्यूमेरिक डिजिट का फैक्टर. वी विल डू लाइक दैट. बट इफ़ यू आर गेटिंग है सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हाउ टू डू फैक्टर, दिस इज द वे वी विल डू. बट 4 को कैसे, 4 किस से डिविजिबल होता है? 2 की टेबल में आता है 2. हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2. एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इज रिपीटिंग ट्वाइस टाइम. स्क्वायर का मतलब होता है ये डिजिट उतनी बार रिपीट हो रही है. इफ़ आई एम राइटिंग हियर एक्स क्यूब, तो दिस क्यूब इट्स रिप्रेजेंट टू पावर ऑफ दिस नंबर. पावर बताती है और ये रिपीट हो रही है 3 टाइम विद द मल्टीप्लिकेशन साइन. अगर मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, इट मीन्स दिस 4 टाइम इट इज रिपीटिंग विद द मल्टीप्लिकेशन साइन.
सो अंडरस्टैंड द पावर मीन, पावर क्या होता है, इसको पावर बोलते हैं और ये पावर ये बताता है और इसको बेस बोलता है. यू विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट पावर. दिस इज द पावर एंड दिस इज द बेस. दिस पावर इट रिप्रेजेंट टू दिस बेस, इट रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ आई एम राइटिंग हियर, सो अंडरस्टैंड द फैक्टर. इसके फैक्टर क्या हो गए 2 कॉमा एंड इफ यू राइटिंग इन ए कॉमा, कॉमा में कैसे लिखोगे 2 कॉमा 2 कॉमा एक्स कॉमा एक्स, ऐसे ही इसको लिखना है. सेम एज 36x स्क्वायर. हाउ कैन यू राइट इट? 36 को कैसे लिखोगे? 36 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर देंगे अपन. 36 के प्राइम फैक्टर किया 2, 118, 2, 9, 3, 3, 1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. राइट इन कॉमा, कॉमा में कैसे लिखोगे 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा x कॉमा x. सो फैक्टर ऑफ दिस टर्म 36x स्क्वायर के क्या हो जाएंगे? ये फैक्टर हो गया. सो अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ टर्म. हाउ वी विल फाइंड आउट फैक्टर ऑफ एनी टर्म. Here I am taking one more example of any expression. Suppose this is the 7x square minus 5xy. Okay, right, first this is the tree diagram. I am explaining to you in expression tree diagram. क्या बोलते हैं इसको? Tree diagram. इस ट्री डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया जाता है? पहले टर्म में इसको डिफाइन करेंगे. टर्म क्या हो गई? 7x स्क्वायर और माइनस 5xy. टर्म के बाद में आपको क्या बताना होता है? टी डायग्राम में फैक्टर बताना होता है. सो 7x स्क्वायर को ब्रेक करेंगे 7x स्क्वायर, इट मीन्स यू विल राइट x, है ना, इजी. सो -5 देन फिर x और ये y. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल इन दिस 4 ट्री डायग्राम -xy प्लस x स्क्वायर प्लस 15. हाउ कैन यू use this tree diagram and how you will divide it in term and factor. Term means -xy, फिर then x square और ये 15. Now -xy it means one digit should be negative y, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो x माइनस y, दोनों करेक्ट होंगे. x square it means x, 15, 3 और ये 5. So understand how to do this questions. If asking about tree diagram, how you can explain it first term then after factor. Now the last topic I am going to explain you coefficient. What is a coefficient? It is important. Coefficient, suppose that this is the expression, it is given 3x square plus 4x plus 5 and asking about x square coefficient is. एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट उसकी पास वाली कांस्टेंट डिजिट होती है, न्यूमेरिक डिजिट होती है, दैट इज 3. एक्स कॉफिशेंट इज 4. ओके, सो अंडरस्टैंड द कॉफिशेंट मीन्स जो वेरिएबल के पास वाली डिजिट होती है उसको कॉफिशेंट बोलते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट वंस अगेन व्हाट इज इट? 3. ना XY कॉफिशेंट नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आंसर दे रहा है -4. एंड ना Y स्क्वायर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? Y स्क्वायर का कॉफिशेंट कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है? 1. सो Y स्क्वायर कॉफिशेंट क्या हो जाएगा? 1. एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. आप 1y स्क्वायर लिखो या y स्क्वायर लिखो, बोथ आर द सेम. So after explaining these are the 4 methods: one term, factor of term, tree diagram and coefficient, it will be easy to solve exercise 13.1. Now the last concept of this algebraic expression, like term and unlike term. क्या होता है ये like term? ये बहुत important है. Like term and unlike term. Like it means similar की बात कर रहा है, unlike it means डिफरेंट की बात कर रहा है. तो सिमिलर क्या क्या होता है इसके अंदर? वेरिएबल सिमिलर होनी चाहिए, वेरिएबल इट शुड बी सेम, एंड उसकी पावर, वेरिएबल एंड पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. इसमें वेरिएबल एंड पावर दोनों डिफरेंट हो सकती है, इट कैन बी डिफरेंट. ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. लाइक इफ आई एम राइटिंग 3x x y x y.
सो विच इज़ द लाइक टर्म, जिसकी क्या है, वेरिएबल सेम है. सो दीज आर द 3x, x, x. ये लाइक टर्म्स हो गई, और ये y एंड y ये वाली लाइक टर्म हो गई. हियर इफ आई एम राइटिंग x स्क्वायर y एंड xy स्क्वायर, दीज आर द डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे x की 2 पावर, यहाँ पे x की 1 पावर, इनकी पावर भी डिफरेंट है एंड वेरिएबल्स भी डिफरेंट है. अगर इसके फैक्टर करूँगी तो ये सिमिलर नहीं आएंगे, इनके फैक्टर सिमिलर आने चाहिए. फैक्टर सिमिलर आने चाहिए, तो फैक्टर सिमिलर नहीं आ रहे हैं. सो हियर आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे लिखा वाई एक्स स्क्वायर. ये दोनों सेम है बट अपोजिट में लिखा जा रहा है, क्योंकि y भी यहाँ पे 1 है, x की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है. सो पावर इज ऑल्सो सेम, वेरिएबल इज ऑल्सो सेम. सो दिस आर द लाइक टर्म. सो अंडरस्टैंड, ऑन के फैक्टर भी करेंगे तो फैक्टर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे. सो रिमेंबर द कंसेप्ट इन लाइक टर्म एंड अनलाइक. लाइक मीन्स वेरिएबल एंड पावर आर सेम एंड वेरिएबल एंड पावर आर डिफरेंट इन अनलाइक टर्म. So now in the next video I will explain you 13.1. This is the introduction of algebraic expression. Thank you.